So today we are going to learn about bioenergetics. Basically, let's first have a look at the breakdown of these two words. Bio means life and energetic means energy related, that can be anything. Alright. When we talk more about it, then it is a branch of science that study the energy relationship. So, what is bioenergetics? It is the branch of science that study the energy relationship. Now, when we talk about the energy relationship, that can be anything. Like it can be the change in energy, or it can be um, the utilization of energy, the absorption of energy, and everything that's energy related. All right. Then let's move towards what kind of conversion of energy. Right now, we are going to discuss the conversion of energy from solar energy to chemical energy. Now, can you guess that what is the process that I'm talking about right now? The process is photosynthesis. In the process of photosynthesis, you convert, not eventually you, but plants convert solar energy to chemical energy. Okay, then because light is converted into what? Into carbohydrates. We'll study photosynthesis in detail by later, so we're not going to have a look onto that right now. Then this is just a basic overview of the whole bioenergetics um, chapter, we can say. So in that chapter we do have ATP. Now, what is ATP? What is the full form of ATP? The full form of ATP is adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate is what? It is pentose sugar. It is ribose. It is ribose. We can say the sign word is ribose, and ribose is what? It is five. It is the pentose, which contains five sugar compounds, and triphosphate means it contains three phosphates. All right. Then we have the breakdown of ATP. When ATP breaks down, then it forms ADP, and it forms inorganic phosphate plus 7.3 KCl mole. This is the breakdown of ATP. Alright. Now what is ADP? ADP is adenosine diphosphate. So when one molecule of phosphate, like there were three molecules here and there are two molecules here, तो जब एक मॉलिक्यूल हमने सब्ट्रैक्ट करवाया, ब्रेकडाउन हुआ एटीपी का, तो एडीपी में दो मॉलिक्यूल्स आए, किसके? फॉस्फेट के, और बाकी का कहाँ चला गया? फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में चला गया, एंड आपके पास क्या जनरेट हुआ? 7.3 KCl पर मोल भी आपके पास जनरेट हुआ. सही है. अब हम आ जाते हैं
दो रिएक्शंस पे। वो दो रिएक्शंस क्या हैं? वो दो रिएक्शंस हैं एक्सर्गोनिक रिएक्शन और दूसरा हमारे पास है एंडरगोनिक रिएक्शन। तो जो हमारे पास एक्सर्गोनिक रिएक्शन है, एक्सर और एंडर ये दो वर्ड्स हैं जिनका मतलब है आउट और इन। सही है। जैसे हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, उनमें आप हीट की एब्जॉर्प्शन और हीट की रिडक्शन की बात कर रहे हो, तो वैसे ही हमारे पास यहाँ पर एक्सर्गोनिक और एंडोगोनिक था। तो एक्सर्गोनिक जो है, एक्सर्गोनिक जैसे मैंने बताया कि एक्सर का मतलब क्या है? आउट। तो इफ एक्सर का मतलब है आउट, तो इसमें क्या होगा? इसमें एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी इज रिलीज्ड। इसमें क्या होगी? इसमें एनर्जी रिलीज होगी। और उसके बाद आपका जो एंडोगोनिक है, इनको हम बाद में डिटेल में भी पढ़ेंगे। अभी आई एम जस्ट गिविंग अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ एवरीथिंग। एंडरगोनिक जो है हमारा, एंडरगोनिक रिएक्शन, इसमें क्या होगा? एंडर का मतलब क्या होता है? इन। तो इसमें एनर्जी इज रिक्वायर्ड। सही है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल पे। जैसे हमारे पास एंडरगोनिक रिएक्शन है, तो उसमें क्या होगा? एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो वो क्या है? वो एक बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस है। बॉन्ड मेकिंग बोलो या फॉर्मिंग बोलो, वो क्या है? बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस है। सही है। अब इसमें हमारे पास साइंथेसिस होती है। जहाँ भी बॉन्ड की फॉर्मेशन की बात आती है वहाँ आप उसको साइंथेसिस भी बोलते हो। सही है। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास एग्जाम्पल ले लेते हैं हम अमाइनो एसिड्स का। तो हम क्या बोलते हैं कि अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड्स जब कंबाइन होते हैं, जैसे अमाइनो एसिड और 3 अमाइनो एसिड्स हैं, लाइक जितने भी हैं, दे कैन बी मोर एज वेल। सही है। तो वो क्या बनाते हैं? वो प्रोटीन बनाते हैं। अमाइनो एसिड्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो ये क्या है? ये हमारे पास एंडरगोनिक है। इसमें क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड है। ये बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस है। इसमें किसी चीज़ की साइंथेसिस हो रही है, कोई चीज़ बन रही है। अमाइनो एसिड से हमारे पास प्रोटीन बन रहा है। सही है। ऐसे ही उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सर्गोनिक पे। एक्सर्गोनिक पे मैंने क्या बोला? आपकी एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। एनर्जी अगर रिलीज होगी एक्सर्गोनिक में, तो मैंने साथ ही साथ ये भी बताया कि आपका जैसे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, उनमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है और हीट की एब्जॉर्प्शन होती है। वैसे ही इनमें एनर्जी की रिलीजमेंट, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सही है। तो जब हम बात करेंगे एक्सर्गोनिक की, तो उसमें क्या होगा? वो बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस है, बॉन्ड ब्रेकिंग है। सही है। बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस है। अब इसमें सेम एग्जांपल को हम ले सकते हैं। अगर आप प्रोटीन को ब्रेक डाउन करोगे तो आपको क्या मिलेंगे? अमाइनो एसिड्स। सही है। वैसे ऊपर हमने क्या किया? हमने एटीपी को ब्रेक डाउन किया, तो हमें क्या मिला? एडीपी मिला। हमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिला। और हमें क्या मिला? और हमें 7.3 KCl पर मोल मिला। सही है। ये भी क्या है? ये भी फिर एक एक्सोगोनिक रिएक्शन है, एक्सर्गोनिक। सही है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि हमारी आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है। रिडॉक्स रिएक्शन। अब जब हम रिडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे, तो हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन
में दो चीज़ें जब साथ हो रही हों, और वो दो चीज़ें कौन सी होती हैं? ऑक्सीडेशन, सॉरी, आपके पास एक ऑक्सीडेशन होती है और एक क्या होती है? एक आपके पास रिडक्शन होती है। सही है? तो आई थिंक या आपके पास जो ऑक्सीडेशन होती है उसमें क्या होगा? ऑक्सीडेशन में आपका होगा गेन ऑफ ऑक्सीजन। अब वो कैसे होगा, क्यों होगा, उसके एग्जांपल्स वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा, जब ऑक्सीजन गेन होगा तो फिर रिमूवल किसका होगा? हाइड्रोजन का। तो इट इज़ अ गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और ये रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हो आप इसको। सही है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का भी रिमूवल होता है। फिर हम आ जाते हैं रिडक्शन पे। रिडक्शन में हमारे पास और ये होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन्स, और हमारे पास रिमूवल किसका होगा? फिर रिमूवल होगा ऑक्सीजन का। तो ये होगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सही है? जब हमारे पास जब भी ये दोनों रिएक्शन साथ में हो रहे होंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। सही है? अगर हम इसको एक इक्वेशन देके समझना चाहें तो हम अपने जैसे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करता है तो उसको क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, CO2 प्लस H2O। सही है? ये जो मैं लिख रही हूँ दिस इज अ बेसिक फार्मूला ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये आपका फोटोसिंथेसिस का फार्मूला है। सही है? तो फोटोसिंथेसिस के फार्मूला में प्लांट को इवेंचुअली क्या चाहिए होता है? ग्लूकोज बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए होता है, CO2 प्लस H2O। तो हमारे पास फॉर्म क्या होता है इन दोनों से? C6H12O6 ग्लूकोज, और प्लस हमारे पास क्या आ जाता है? ऑक्सीजन। अब जब आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो CO2 है ये इसमें हमारे पास क्या हुई है? इसमें हमारे पास रिडक्शन हुई है। रिडक्शन कैसे हुई है? इसमें हमारे पास लूज हुआ है किसका? ऑक्सीजन का। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपके पास क्या हुआ है? ऑक्सीजन का लूज हुआ है। सही है? वहीं पे अगर आप यहाँ पे आ जाओ तो आपके पास यहाँ पे क्या हुई है? ऑक्सीडेशन हुई है। सही है? ऑक्सीडेशन कैसे हुई? आपके पास गेन हुआ है ऑक्सीजन का। यहाँ देखो आप, गेन किसका हुआ? ऑक्सीजन का। यहाँ मेरे पास एक ऑक्सीजन था, यहाँ मेरे पास दो है। इसमें किसका लूज हुआ है? हाइड्रोजन का। तो जब हाइड्रोजन का लूज होगा और ऑक्सीजन का गेन होगा तो वो क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी। तो मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या हुई है? यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन हुई है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या हुई है? यहाँ पे हमारे पास रिडक्शन हुई है। CO2 में हमारे पास रिडक्शन हुई है। क्या बना? C6H12O6। ये हमारे पास क्या हुई? रिडक्शन हुई। सही है? रिडक्शन कैसे हुई? यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन एटम का लूज हुआ और हाइड्रोजन एटम्स का गेन हुआ। सही है? This was all about our today's video. We'll continue this in the next video.